إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. برادران اسلام، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر محض اس کی عبادت کرنے، اس کے احکام کو بجا لانے اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی برسات ہوجیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سید ولد آدم آمینہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت. لوگو، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، جدھر کدھر بھی آپ رہو، یدرککم الموت، موت آپ کو آ کر ہی رہے گی. موت کے گھاٹ آپ کو اتر کر رہنا ہی ہوگا، چاہے آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھو، چاہے آپ سفر کرو، چاہے آپ اپنے کھیتوں کے اندر رہو، چاہے آپ موت سے بچ کر آپ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، آپ کسی بھی حالت میں رہو، آپ سفر میں رہو، حضر میں رہو، گھر میں رہو، گھر کے باہر رہو، جہاں کہیں بھی آپ چلے جاؤ، موت آپ کو آ کر ہی رہنا ہے، موت آپ کو پہنچ کر ہی رہے گی. آپ موت کے نوالے میں اور آپ جا کر ہی رہیں گے. بھائیو، ایک بات یاد رکھ لیجئے، موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ہر کسی کو آ کر ہی رہے گی. عالم کو بھی موت آئے گی، جاہل کو بھی موت آئے گی، امیر کو بھی موت آئے گی، غریب کو بھی موت آئے گی، بچے کو بھی موت آئے گی، بوڑھے کو بھی موت آئے گی،
औरत को भी आएगी, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी मखलूकात इस दुनिया के अंदर है ना, उन तमाम को मौत आकर ही रहेगी। अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी मखलूकात हैं, चाहे चरिंदे हो, परिंदे हो, इंसान हो, जिन हो, जितनी भी मखलूकात इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जी रही हैं, सांस ले रही हैं, अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, एक ना एक दिन उनको फना होना होगा, एक ना एक दिन उनको इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, एक ना एक दिन उनको अपने रब से जाकर मिलना होगा। लेकिन एक ही जात, एक ही चीज जो इस दुनिया के अंदर बचेगी, एक ही चीज जो बचकर रहने वाली है, वो है वयबका वजहु रब्बिक, मेरे और आपके परवरदिगार, मेरे और आपका पालनहार, मेरे और आपका रब्बुल आलमीन, जिसने मुझे और आपको पैदा करके इस दुनिया के अंदर भेजा, वो एक ही जात बचने वाली है, वो एक ही जात बाकी रहने वाली है। उसके अलावा कोई ऐसी जात नहीं है, उसके अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, उसके अलावा कोई ऐसी जान नहीं है जो दुनिया के अंदर बचे। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात एक जात ऐसी है जो बचकर रहने वाली है, जो बाकी रहने वाली है। उसके अलावा जितनी भी जाने हैं, उन सारे के सारों को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर अपने रब्बे हकीकी से, अपने सही परवरदिगार से, अपने रब्बुल आलमीन से मिलकर ही रहना होगा। वैसे वक्त में जब मुझे और आपको मालूम है कि मेरी और आपकी मौत यकीनी है, मुझे और आपको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो फिर मैं और आप जानते हैं कि एक ना एक दिन मुझे और आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो क्या मैं और आप छोड़कर जाने के लिए कोई तैयारी कर रखे हैं? मौत को मैं और आप कभी याद कर रहे हैं? मुझे और आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो फिर मैं और आप अपने रब के सामने जाकर अपने नामे अमाल को कौन से हमारे अपने रब के सामने हम रखेंगे? क्या हमने उसके लिए कुछ तैयारी की है? क्या हम प्रिपेयर हैं कि मरने के लिए तैयार हैं? देखिए, एक बात याद रख लीजिए, अगर बंदा मोमिन है, अगर बंदा मुसलमान है, अगर बंदा रब्बुल आलमीन के अहकाम का फरमाबरदार है, तो फिर वो बंदा जब मौत उसको आती है तो बंदा डरता नहीं है, बगैर डरे के खुशी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं, उनके सामने अगर मौत का तज़किरा किया जाए, अगर मौत की बात की जाए, तो फौरन डरते हैं, भाई ये टॉपिक बदल दे, मुझे मौत के बारे में अगर कुछ बोले तो डर शुरू हो जाता, क्या होता कि न कोई बात छोड़ दे दूसरी बात कर। भाइयों, हमको मालूम है, हम जानते हैं कि एक न एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़कर रब्बुल आलमीन के पास जाना है, तो फिर हमने उसके लिए क्या तैयारी की है? एक बंदा मोमिन जो होगा, मरने के लिए डरता नहीं है, मरने के लिए घबराता नहीं है, उल्टा खुश होता है। देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के फरिश्ते को भेजा था कि जाओ, जाकर तुम क्या करो, मूसा की रूह को कब्ज करो, मूसा की रूह को कब्ज करो। अब आया फरिश्ता, किसके पास आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा के पास आने के बाद उनको खबर नहीं किया, उनको बोला नहीं कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है। आकर बोला, ऐ मूसा, मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐ मूसा, मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब हजरत मूसा को मालूम नहीं है हकीकत में फरिश्ता है कौन है, पता नहीं। एक पचकर लगाए, उसकी आंख फूट गई, एक ही एक थप्पड़ रसीद किया, एक थप्पड़ हजरत मूसा ने उस फरिश्ते को क्या मारा कि उसकी एक आंख गिर गई। और वो फरिश्ता अल्लाह के पास जाता है, जाकर कहता है, ऐ अल्लाह, तेरे मूसा को मरना गवारा नहीं है। तो अल्लाह कहता है, ऐ मूसा, क्या तुमने मूसा को खबर दी थी? आप मूसा के पास जा रहे हो, मूसा को खबर दी थी? नहीं। बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंख को वापस कर दिया, उसकी आंख आ गई। बाद में वही फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला कहला भेजता है कि ऐ मूसा, अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आपकी उम्र, आप चाहते हो कि आप लंबी उम्र इस दुनिया के अंदर जीना चाहते हो, तो आप एक काम करो, एक बैल या एक जानवर के ऊपर हाथ लगाओ, हाथ लगाओ उसके बालों पर। जितने बाल आपके हाथ को लगते हैं, हर बाल के बदले आपको 1 साल जिंदगी दी जाएगी।
अब इसके ऊपर हजरत मूसा का जवाब क्या होगा? अब हजरत मूसा ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, ऐ मूसा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, इसके बाद फिर क्या होगा? तो अल्लाह ने कहा अल मौत, उसके बाद तो मरना यकीनी है, उसके बाद तो भी आपको दुनिया छोड़ना यकीनी है, उसके बाद आपको ये दुनिया छोड़ना लाजिम है। तो हजरत मूसा ने कहा तो तब तो न अभी मरना गवारा है, मैं अभी मरना गवारा करता हूं। तो भाइयों, जो बंदा नेक होता है, जो बंदा रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करता है, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करता है ना, वो बंदा मौत से कभी घबराता नहीं है, वो बंदा मौत से कभी डरता नहीं है। कभी भी मौत आ जाए तो सरे तस्लीम खम है कि मरने के लिए तैयार हो जाता है कि आ जाओ, मैं मरने के लिए तैयार हूं, फरिश्तों आ जाओ, मेरी रूह कब्ज कर लो। ये नेक लोगों की सिफत होती है, ये नेक लोगों की आदत होती है, ये नेक लोगों की तमन्ना होती है। तो भाइयों, मरने के लिए तैयार हो तो हमको चाहिए कि दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन ने हमको अगर भेजा है तो हम नेक अमल करें, नेक अमल करें। बगैर नेक अमल के हम रब्बुल आलमीन के पास क्या जवाब देंगे? बगैर नेक अमल के, बगैर अमल के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि आदमी जब मर जाता है ना, आदमी जब दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसकी रूह कब्ज हो जाती है, तो उसके साथ उसके खबर तक तीन चीजें जाती हैं। कितनी चीजें? तीन चीजें जाती हैं। पहली चीज उसका माल, दूसरी चीज उसके रिश्तेदार, तीसरी चीज उसका अमल। जाने के बाद जैसे ही सारे के सारे लोग उसको दफनाते हैं, दफनाकर जैसे ही वापस आते हैं ना, तो दो चीजें वापस आ जाते हैं। पहली चीज माल भी वापस आता है, और उसके जो रिश्तेदार थे, उसके अकरीबा जो थे, उसके अहलो अयाल जो थे, उसके घर वाले जो थे, वो दोनों वापस आ जाते हैं। क्या बचता है? फयबका वाहिद, एक चीज बचती है। वो चीज कौन सी है? अमल है। दुनिया के अंदर हमने जितने आमाल किए थे, जितनी नेकियां की थी, जितने रब्बुल आलमीन को खुश करने वाले काम किए थे, वो एक ही चीज बचकर खबर में भी हमारे साथ आएगी। दो चीजें, हमारा माल, हमारी बिल्डिंगें, हमारा पैसा, हमारे खजाने, ये सारे का सारा खबर तक आएगा, दफनाने तक भी आपके साथ रहेगा। उसके बाद वापस चला जाएगा। आपके माँ बाप जो आपको पाले, आपको पोसे, आपको बड़ा किए, आपके ऊपर सारी धन दौलत खर्च किए, वो माँ बाप भी कहां तक आएंगे? खबर तक ही आएंगे। उसके बाद जो माँ बाप खबर तक आए, वो भी वापस चले जाएंगे। उनको भी एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। आज कई ऐसे लोग हैं, मौत के कितने ऐसे जनाजे हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो रोजाना किसी के घर में कहीं खुशी है तो किसी के घर में कहीं गम है, उसके बावजूद भी आदमी अपने हाथों से कई मुर्दों को दफनाता है, उसके बावजूद भी उसके अंदर एहसास पैदा नहीं होता है। उसके बावजूद भी ऐसा आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता नहीं है। हालांकि हर जुमा हर खतीब यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर खतीब के मुंह से हम ये आयत सुनते हैं, उसके बावजूद भी हमारा ईमान ताजा नहीं होता है। भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्रिस्तान गए, किसी सहाबी का इंतकाल हुआ था, सारे सहाबा वहां पर मौजूद हैं, अल्लाह के नबी भी वहां पर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर जमीन से खोदते हैं, उसको खुरदते हैं, इतना रोते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने से नीचे की जमीन पूरी कच्ची हो जाती है, पूरी गीली हो जाती है। सारे सहाबा वहां पर मौजूद हैं, सारे सहाबा अल्लाह के नबी से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हो? तो अल्लाह के नबी कहते हैं, या इख्वान, ऐ मेरे भाइयों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लिमिस्ली हादा फअइद्दू, आप भी इसके लिए तैयार हो जाओ, आप भी इसके लिए तैयार हो जाओ। आप भी एक ना एक दिन इसके अंदर आना है, आपको भी एक ना एक दिन दफनाया जाएगा, आप भी एक ना एक दिन अपने रब से जाकर मिलोगे। क्या आपने उसके लिए कुछ तैयारी कर रखी है? क्या आपने उसके लिए अपने तोशे को, कुछ आखिरत का तोशा अपने लिए भरकर रखा है? क्या आपने आपके झोली में नेकियां कुछ बनकर रखी हैं?
पता नहीं कौन किसका इंतकाल कब होगा, कौन दुनिया छोड़कर कब जाएगा। आज हम सारे के सारे यहाँ पर बैठे हैं, असर में कौन रहेगा ना आपको मालूम ना मुझे मालूम। क्या यहाँ तक कि ये भी नहीं मालूम कि हम आज जुमा की नमाज पूरी की पूरी नमाज सारे के सारे पढ़ सकेंगे? नहीं, एक सलाम फेर कर दूसरे सलाम फेरने के तक भी हमारे अंदर इंतजार नहीं कि किसकी रूह कब कब्ज हो जाएगी, हमको पता नहीं है, पता नहीं है। इसके बावजूद भी सबको मालूम है, सारे लोग कहते हैं कि एक ना एक दिन मरना चले, एक ना एक दिन मरना चले, सब बोलते हैं, लेकिन क्या अमल करते हैं? क्या उसके लिए तैयार है? क्या उसके लिए हम मरने के लिए तैयार है? जैसे ही मौत आएगी ना, लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, जैसे ही मौत आ जाएगी, मरने के बाद आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, ऐ अल्लाह एक मर्तबा तू मुझे दुनिया के अंदर भेज, फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं नेक अमल करूंगा दुनिया के अंदर जाकर। अब तक तो नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह एक मौका दे। क्या अल्लाह देगा? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को मौका देगा? नहीं देगा। हम जानते हैं, उसके बावजूद भी हम गाफिल हैं, दुनिया के पीछे हम पड़े हुए हैं, दुनिया कमाने के पीछे हम पड़े हुए हैं, माल हासिल करने के पीछे हम पड़े हुए हैं, माल के पीछे पड़े हुए हैं। इंसान माल के साथ साथ अगर नेकियां कमा लेगा, माल के साथ साथ अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लेगा ना, तो ऐसा बंदा सबसे बेहतरीन बंदा है, और ऐसा बंदा मरने से कभी भी नहीं डरता है। तो भाइयों, मुझे और आपको चाहिए कि हम मौत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मौत की बहुत सारी सख्तियां होती हैं, मौत की बहुत सारी सख्तियां होती हैं। शैतान किसी ना किसी तरीके से बंदे को जहन्नम में ले जाने की पूरी कोशिश करता है, बंदे को रब्बुल आलमीन की इबादत से रोकता है, बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और फरामीन बजा लाने से रोकता है। कैसे? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, उनके ताल्लुक से आता है कि मरने से करीब एक मर्तबा उनके पास जितने भी उनके शागिर्द थे, उन सारे के सारे शागिर्दों को बाहर भेज दी कि तुम सारे के सारे बाहर चले जाओ, मुझे अकेले को थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, क्या बात है, पता नहीं, सारे के सारे उनके जो शागिर्द थे, उनके पास जो रहने वाले थे, वो सारे के सारे चले गए। इमाम अहमद इब्न हंबल अकेले हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल अकेले हैं, और वहां से बैठकर आवाज कर रहे हैं, ला ला ला, मतलब नहीं। परेशान, जितने लोग हैं परेशान, बार बार आ रहे हैं, तो इमाम अहमद इब्न हंबल उनको भेज रहे हैं। बाद में सारे लोगों को बुलाकर बोले कि मैं देख रहा था कि मेरी मौत का वक्त करीब है, शैतान मुझे किसी न किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी से रोकना चाहता है। और मैंने कहा नहीं। तो उस वक्त शैतान ने कहा उनको, ऐ अहमद, तू कामयाब हो गया, तुझे अल्लाह की बनाई हुई जन्नत मिलेगी। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, नहीं, अभी मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरी और सांस बचकर है, मेरी 15 या 16 14 जितनी भी सांसें हैं वो सांसें बचकर हैं। पता नहीं उन 15-16 सांसों में भी मौत का मुझे शैतान कब भड़काएगा नहीं मालूम, मुझे शैतान कुछ क्या करेगा नहीं मालूम। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे शैतान की पनाह से बचा। ये नेक लोग ऐसे थे कि मरने से पहले भी क्या करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे। आज अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाए, मरने से पहले गालियां शुरू हो जाती हैं, क्या हमें इसका मिले थे, क्या हमें इसका, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है, ये अदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल उनको शैतान भड़काने की कोशिश किया, भड़काने की कोशिश किया, रास्ते से निकालने की कोशिश किया, रास्ते से हटाने की कोशिश किया। क्या इमाम अहमद इब्न हंबल ने शैतान की बात सुनी? क्या इमाम अहमद इब्न हंबल ने शैतान की बात सुनी? नहीं सुनी। तो भाइयों, कुछ भी हो जाए, मौत कभी भी आ सकती है, कौन सी भी हालत में आ सकती है, कौन सी भी वक्त आ सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त मुकर्ररा पर आएगा, ना तो 1 सेकंड इधर होगा ना तो 1 सेकंड उधर होगा। जो वक्त जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था, उसी वक्त, उसी लम्हे में, उसी लहजे में मौत का फरिश्ता आएगा, हमारी मौत लेकर जाएगा,
हमारी रूह को कब्ज कर जाएगा। आदमी चाहे तो सफर में भी हो सकता है, आदमी काम में भी कर सकता है, आदमी नमाजी भी हो सकता है, नमाज के हालत में भी उसको रूह उसकी कब्ज हो सकती है। इसीलिए हर वक्त हर बंदे को चाहिए कि हर बंदा हर वक्त हमा वक्त मौत के लिए, मरने के लिए, रब्बुल आलमीन से मिलने के लिए तैयार हो जाए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक मर्तबा ख्वाब में देखते हैं, क्या देखते हैं कि मौत का फरिश्ता उनके पास आता है तो उनको सलाम करते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरे मौत का वक्त कब आया। ख्वाब में देखते हैं मेरे मौत का वक्त कब आएगा जरा मुझे बता। तो फरिश्ता उनको ऐसा हाथ बताता है, 5 उंगलियां ऐसा बताता है, ऐसा बताता है, चले जाता है। बाद में दूसरे दिन सुबह उठकर इमाम मालिक रहमहुल्लाह अपने एक शागिर्द को बुलाते हैं, बुलाकर बोलते हैं कि उस वक्त उनके दौर में एक ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन सीरीन। क्या नाम था? मोहम्मद बिन सीरीन। बहुत बड़े आलिम थे, ख्वाबों की ताबीर बड़े अच्छे तरीके से बताते थे, बहुत जबरदस्त तरीके से बताते थे, कुरान और हदीस की रोशनी में बताते थे। तो इमाम मालिक ने अपने शागिर्द को, उनके पास जो शागिर्द था उसको भेजे कि जाओ, जाकर मुझे ऐसा ख्वाब में ऐसा आया है, उसकी क्या ताबीर हो सकती है, जाकर आप उनसे पूछ कर आओ, जाकर उनसे पूछ कर आओ, क्योंकि फरिश्ते ने मुझे ऐसा बताया। वो 5 चीजों से मुराद क्या है मुझे नहीं मालूम हुआ। तो मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि 5 उंगलियों को बताने से मुराद यह है कि 5 चीजें ऐसी हैं जिनका इल्म अल्लाह को है, 5 चीजें ऐसी हैं जिनका इल्म अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। कितने बड़ा से बड़ा आलिम क्यों ना हो, कोई भी नहीं जानता। उसमें से एक चीज क्या है? मौत है। मौत का वक्त सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम है। मौत का वक्त सिर्फ रब्बुल आलमीन के अलावा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा, इलाहुल आलमीन के अलावा, मेरे और आपके परवरदिगार के अलावा कोई भी नहीं जानता है। तो इमाम मालिक ने कहा तो ऐसे वक्त तो इसका मतलब है कि मेरी मौत का भी यकीनी है, मुझे भी मरना है, और उन्होंने भी तैयारी की। तो पता है चला कि मरना यकीनी है, मौत यकीनी है। हर आदमी को एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली तैयारी क्या है कि आदमी हमेशा ये कोशिश करे कि मेरी मौत इस हालत में आए कि मैं ईमान की हालत में मेरी मौत हो, ईमान की हालत में मेरी मौत हो। सारे लोगों को चाहिए कि सारे लोग अपने ईमान पर साबित कदम रहें, अपने ईमान पर साबित कदम रहें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा, कुल आमनतु बिल्लाह, तू का एक है कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, तुम मुस्तकीम, फिर उस पर जमे रहो। परेशानी आए कोई मसला नहीं, मुसीबत आए कोई मसला नहीं, कितनी बड़ी परेशानी, टेंशन कुछ भी आ जाए, आप ईमान को मत छोड़ो, आप अपने इस्लाम को मत छोड़ो, आप अपने दीन को मत छोड़ो। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, अब आजकल मैं और आप देख रहे हैं, कोई माल के पीछे अपने दीन को छोड़ रहा है, कोई लड़की के पीछे अपने दीन को छोड़ रहा है, कोई इश्क और मोहब्बत के पीछे अपने दीन को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार कर रहा है। अगर ऐसे वक्त में उसकी मौत आ जाए, अगर ऐसे वक्त में वो आदमी अपने दुनिया को छोड़कर चला जाए, तो हाल क्या होगा, अंजाम क्या होगा। कई ऐसे लोग थे अल्लाह के नबी के दौर में भी इस्लाम लाते थे, बाद में मुर्तद हो जाते थे। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा कौन थी? अल्लाह के नबी की बीवी थी, अल्लाह के नबी की बीवी थी। उनका एक शोहर था, उनका शोहर था, इस्लाम लाया था, सहाबी बन गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत किया था। उनसे पहले नबी की बीवी बनने से पहले उनका शोहर था। एक मर्तबा हबशा गया, हबशा जाने के बाद नसरानी बन गया, मुर्तद हो गया। उसके मौत के बाद, उसके इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा से शादी की, उम्मे हबीबा से शादी की। कई ऐसे वाकयात हैं, नबी के इंतकाल के बाद कई लोग दीन को छोड़ दिए कि कहे कि भाई हमने जो ईमान लाया था मोहम्मद पर लाया था, जब तक मोहम्मद जिंदा था हमने उसकी बात मानी, अब मोहम्मद मर गया, मोहम्मद दुनिया को छोड़ कर गया, अब हम भी दीन को छोड़ देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था, युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, मोमिन आदमी सुबह में मोमिन होता है तो शाम तक काफिर हो जाता है। यही हाल है। आज कई लोग दुनिया को छोड़कर, ये दीन को छोड़कर माल के पीछे या लड़की के पीछे या इश्क और मोहब्बत के पीछे अपने दीन को, अपने मजहब इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अंबिया की दुआ क्या होती थी? ऐ अल्लाह हमारी ईमान की हालत में मौत ला। कैसे? हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे, फातिर अस्समावाति वल अर्द, फातिर अस्समावाति वल अर्द तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ऐ अल्लाह मेरी मौत आए तो मेरे मुसलमान की हालत में, ईमान की हालत में मेरी मौत हुए। ये अंबिया की दुआ थी, अंबिया ने हमको दुआ सिखलाई थी। इसीलिए हमको चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह जब भी हमारी मौत हो, जब भी हमारा खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो, खातिमा हमारा हो तो बिलखैर खातिमा फरमा, अच्छा खातिमा फरमा। ये हमेशा हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर भी दुआ सिखलाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह तू मुझे जब हमको हिदायत देगा, हिदायत देने के बाद हमारे दिल को मत फेर, दूसरी तरफ मत फेर। जब तू मुझे एक मर्तबा हिदायत दे दिया तो हमारा खातिमा जब तक होगा ईमान की हालत में हमारा खातिमा फरमा। इसलिए हर बंदे को चाहिए कि बंदा हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अल्लाह जब भी हमारा खातिमा हो तो ईमान की हालत में खातिमा हो, जब भी हमारी मौत हो तो हमारी मौत ईमान की हालत में हो। ये मुझे और आपको ये तालीम दी गई है। मैं और आप हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसी दुआ करें, अल्लाह ईमान की हालत में हमारी मौत हो, ईमान की हमेशा दुआ करें, डरना नहीं, घबराना नहीं, बस कुछ नेकियां तैयार करके रख लेना, रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करते रहना, तो यकीनन कोई भी बंदा मोमिन मौत से डरता नहीं है। दूसरी चीज जो मुझे और आपको अपनी मौत के लिए, मरने के लिए तैयार करना है वो ये कि नेक अमल, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलाह, इंसान जब मर जाता है, दुनिया छोड़कर जाता है तो तीन चीजें उसके साथ आती हैं मरते दम तक, क़यामत तक, जब तक अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब शुरू नहीं करता ना उस वक्त तक। पहली चीज सदक़तुन जारिया, कुछ ऐसा नेक काम करो, कुछ ऐसा सदका करो, कहीं मस्जिद बन रही है या कहीं मदरसा बन रहा है तो वहां पर आप हिस्सेदार बन जाओ या उसको बनाने वाले बन जाओ, तो एक कम या कोई ऐसा नेक अमल करो या ऐसा सदका करो जो आपको मरने के बाद भी आपके लिए काम आए। और इल्मिन युंतफ़अु बिही, या एक ऐसा आपको कोई इल्म मालूम है, आपको कुछ मालूम है तो उसको लोगों तक पहुंचाओ, या आपको मालूम नहीं है तो कोई तलबा मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं या जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप उनकी किफालत ले लो, आप उनकी किफालत ले लो, किसी को हाफिज बनाओ, किसी को आलिम बनाओ, किसी को कुछ बनाओ, ये भी आपको काम आएगा। उसके बाद तीसरी चीज जो मुझे और आपको सबको करना है वो है अव्वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, या तो एक काम करके जाओ कि आप अपने बच्चों को नेक बनाओ, वो नेक बच्चे आपके हक में दुआ करें, आपके मरने के बाद आपके बच्चे दुआ करें। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को नेक बनाएं, इस लायक बनाएं कि हमारा बच्चा हमारे मरने के बाद भी हाथ उठाकर अपने घर वालों के लिए दुआ करे, अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करे, अपने बच्चों को नेक बनाओ। ये तीन चीजें इंसान की क़यामत तक साथ आएंगी, उसके अलावा ना तो उसका माल आएगा, ना उसका पैसा आएगा, उसकी दौलत आएगी, उसकी जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर इंसान कमा कर रखा है ना, कुछ भी इंसान के काम नहीं आएगा, इंसान के कुछ भी काम नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, कुल ऐ नबी आप कह दो इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रुना मिन्हु, जिस मौत से आदमी भागता है फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, एक ना एक दिन उससे मुलाकात करके रहना होगा, एक ना एक दिन मौत से मुलाकात होगी, एक ना एक दिन मरना होगा। तो इसके लिए क्या करो, तैयार हो जाओ, तफ़िर्रुना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून, क्योंकि जैसे फौरन जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे। इसीलिए भाइयों नमाजों की पाबंदी करते रहें, नमाजों की पाबंदी करते रहें, क्योंकि अगर नेक बंदे को, मोमिन बंदे को उसकी खबर के अंदर उसकी रूह को जब दोबारा लौटाया जाएगा तो नेक बंदे की, मोमिन बंदे की तमन्ना क्या होगी मालूम, उसकी आरज़ू क्या होगी, उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं फिर नमाज पढ़ूंगा, मैं अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा। एक नेक बंदे की यही तमन्ना होगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमियों को जहन्नम में और जन्नतियों को जन्नत में जब दाखिल करेगा तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, अरे भाई तू और मैं दोनों दुनिया के अंदर एक साथ थे, तू मेरा भाई था, तू मेरा दोस्त था, तू मेरा पड़ोसी था, लेकिन मा सलककुम फी सकर, तूने क्या ऐसा काम किया, अल्लाह ने तुझे जहन्नम के अंदर डाला और अल्लाह ने मुझे जन्नत के अंदर डाला। तो आदमी कहेगा, क्या कहेंगे,
लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने वालों में से नहीं था, मैं नमाज अदा करने वाला नहीं था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे आज जहन्नम के अंदर दाखिल किया है। भाइयों, वक्त मुख्तसर है, वक्त मुख्तसर है। वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिया है उसको गनीमत समझें, उसको गनीमत समझकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे बन जाएं। नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें और नेक बंदे बनने की पूरी कोशिश करें। पता नहीं मेरी और आपकी कब रूह कब्ज होगी, पता नहीं मैं और आप अल्लाह से कब मिलने वाले हैं, पता नहीं आज अब जो आदमी आज हमारे साथ जुम्मा की नमाज पढ़ा, कल असर में या आज ही असर में वो आदमी जिंदा नहीं आएगा, मुर्दा बनकर आएगा। जनाजे को उसके मैं और आप लेकर जाने वाले होंगे, तो हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। थोड़ी देर के लिए सोचें और मौत के लिए कुछ ना कुछ तैयारी कर लें। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को जब भी हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग हैं हम सारे लोगों को मरते दम तक नेक बनकर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग परेशान हाल हैं उन तमाम की परेशानियों को तू ही दूर फरमा। जितने भी लोग मुसीबतों में मुब्तला हैं इलाहुल आलमीन उन तमाम की मुसीबतों को तू ही दूर फरमा। इलाहुल आलमीन कई ऐसे मुसलमान भाई हैं जो अस्पतालों के अंदर बीमार हैं, इलाहुल आलमीन उन तमाम को जल्द अज जल्द शफाए आजिला और कामिला अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।